Good morning, class 11th. In the running topic, the states of matter, we have discussed till Boyle's law. In states of matter, we are talking about the gaseous laws. First law हमने complete कर लिया था, that was Boyle's law. Today we will study next laws. Second one is Charles law. So what is Charles law? Let's see. जैसा नाम है, as a name in front of you, Charles discovered this law and it states that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. Means volume is V is directly proportional to the temperature. कहने का मतलब ये है कि चार्ल्स ने वेरिएशन कहाँ देखा? चार्ल्स ने किस किस को लिया? चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर को इन 1787 दोनों के अंदर वेरिएशन नोट किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और बताया कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. सो अकॉर्डिंग टू दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हाट आई गेट V इज इक्वल टू K और T, where K is a proportionality constant. K is a constant. And according to this, as you know that V is equal to K or T plus 273 degree Celsius. As you know that the relation between the capital T and small t, if we find out the temperature in Kelvin, then we add 273 degree Celsius in the given temperature. Means this one is the relation between Kelvin and Celsius. As you know that we can measure the temperature by the three ways. The first one is degree Celsius, the second one is Kelvin, and the third one is Fahrenheit. The relation between the Kelvin and degree Celsius is K is equal to 2 plus T plus 273, whereas relation between Celsius and Fahrenheit is that C upon 5 is equal to F minus 32 upon 9. ठीक है? F minus 32 upon 9. All these the relation you have earlier studied in previous classes. So this one is the Charles law. According to this, as where K को हम यदि बाहर करना है, क्या जाएगा? K is equal to V upon T. If we have the two volume as well as two temperature, then our formula will be is equal to V1 upon T1 is equal to V2 upon T. क्या होगा? If you have two variation between the volume and temperature, the formula will be V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. That is true for two or more gases. If next the relation between another one, so if we have T is equal to 0 degree Celsius, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस. T is equal to 0 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. एंड when V is equal to ले लेंगे V0, then हो जाएगा आपका V0 is equal to K into 273 degree Celsius. After that
कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा V0 अपॉन 273 डिग्री सेल्सियस। ये अप्रॉक्स पूरी कंप्लीट वैल्यू होगी 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या लिया है 273, आपकी बुक में क्या लिखा होगा 273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सो V इज इक्वल टू V0 अपॉन, और आपका आ जाएगा ये 273 और विद इन ब्रैकेट T प्लस 273। ठीक है जी, यहां पर क्या ले लेंगे, V0 को क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं 273 को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा आपका V इज इक्वल टू V0 अपॉन 273 और नहीं क्या लेना है हमें कॉमन 1 प्लस T अपॉन 273, ये नहीं आएगा, कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू V0 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन 270, मल्टीप्लाई कर दिया इसका, इसमें ये 273 को कैंसिल आउट करने के लिए, इसको हमने 273 को कैंसिल आउट करने के लिए 273 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 273 अपॉन में आ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन आ गई आपकी V इज इक्वल टू V0 और 1 प्लस T अपॉन 273, और यदि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं V इज इक्वल टू V0 और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एल्फा वॉल्यूम अपॉन P, वेयर अल्फा V इज इक्वल टू वॉल्यूम कोफिशिएंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट। ठीक है, तो दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम कोफिशिएंट एंड वॉल्यूम। सो अगर यहां अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वॉल्यूम इज इक्वल टू जाएगा V माइनस V नॉट अपॉन T इंटू V नॉट को यहां पर that is equal to 1 upon 273, that is equal to 3.661 multiply 10 to the power minus 3, और यूनिट होगा इसका पर डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस टू पावर -1। thus for every 1 डिग्री क्या निकालेंगे, for every 1 डिग्री change in temperature the volume of gas changes by 1 upon 273। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे क्या होगा टेम्परेचर चेंज होगा तो जो अल्फा यानी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 1 upon 273 या 3.661 into 10 to the power -3 पर डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। सो दैट वाज द चार्ल्स लॉ। नाउ let's see the graphical representation of Charles law. Graphical representation, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस किस के बीच में ग्राफ आएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ आएगा, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या होगा जी, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज को देखते हैं। अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करें, ठीक है, यानी यहां आप ले लें दैट इज द ओरिजिन पॉइंट O, यहां आपका आ गया टेम्परेचर दैट इज इन केल्विन, दैट इज द वॉल्यूम। यहां x एक्सिस के ऊपर आपने ले लिया टेम्परेचर और y एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम। तो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन
ठीक है, विच इंडिकेट द ग्राफ मीन्स यहां होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर v और वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रेसिप्रोकल क्या होता है, डेंसिटी होती है, तो v और 1/d के बीच में जो ग्राफ होगा वो ये होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट लॉ है आपका सिलेबस में जो है, सो लेट्स सी गैलुसैक लॉ। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गैलुसैक and this law is also known as Amonton's law, and this shows the relation between pressure and temperature when the volume is constant. When the volume is constant, according to this law, the pressure of a given mass is directly proportional to the absolute temperature. Means pressure जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर वुड बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट इज इन केल्विन। सो P इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने इरेज कर दिया, हटा दिया, इरेज नहीं किया, इज इक्वल टू दैट इज K into T, or we can write it as you know, the relation between the Celsius and temperature, K within bracket T plus 273 degree Celsius. So K को बाहर निकाल लिया तो आ जाएगा आपका P1 upon P upon T. For two or more gases, the formula will be P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. So this one is the relation between प्रेशर एंड टेम्परेचर। मीन्स क्या किया, गैलुसैक ने चार्ल्स के लॉ को ही एक्सटेंड किया। चार्ल्स का लॉ रिलेशन शो कर रहा था किसके बीच में, वॉल्यूम एज वेल एज टेम्परेचर। तो उन्होंने यहाँ क्या ले लिया, उन्होंने दूसरी जो यूनिट ले ली वो था प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में गैलुसैक ने क्या किया, रिलेशन को डेवलप किया और रिलेशन दिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली कहा, it states that pressure is directly proportional to the temperature, and for two or more gases, that is P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. Okay, that was the गैलुसैक लॉ। आगे देखते हैं कि प्रेशर कोफिशिएंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। So how we can calculate the pressure coefficient by Avogadro's और Amonton's law, sorry, Gay-Lussac law और Amonton's law. For the calculation of pressure coefficient, we know that if we take temperature is 0 degree Celsius, temperature क्या है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है हम उसको लेंगे P नॉट। प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हमने 0 डिग्री ले लिया तो उसको रिप्रेजेंट किया हमने P नॉट के द्वारा। P नॉट इज इक्वल टू K प्लस 273, K को बाहर ले लिया, P नॉट अपॉन 273, देन प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आएगा आपका P नॉट अपॉन 273 प्लस T प्लस 273। क्या बाहर कराएंगे इस 273 को, P इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस T अपॉन 273। इस 273 की जगह क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 273 दैट इज इक्वल टू अल्फा P। P नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा P इनटू T, where alpha P is the pressure coefficient. Alpha P को कैलकुलेट करना है तो alpha P आ जाएगा आपका P minus P नॉट अपॉन T into P0, that is equal to, इसके अकॉर्डिंगली हमने 1/273, 1/273 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.661 into 10 to the power minus 1 डिग्री सेल्सियस इनवर्स या पर डिग्री सेल्सियस। So for every change in temperature the pressure of gas changes। अगर हम 1 डिग्री चेंज करते हैं किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर, जो प्रेशर चेंज होगा वो 1/273 चेंज हो जाएगा। 1/273 ऑफ द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने टेम्परेचर शुरू में ही क्या लिया है 0 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया है। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू दिस।
That is a graphical representation. But before this law means Gay-Lussac law fails at low temperature. This is the drawback. This law fails at low temperature. ये जो नियम है गैलुसैक का, ये लो टेम्परेचर के ऊपर क्या है, फेल है. ठीक है, क्यों? बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिकम सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि हमने यहाँ वॉल्यूम को क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया हुआ है. देयर इज ए ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर को हमने केल्विन में लिया है, प्रेशर वाई एक्सिस के ऊपर, टेम्परेचर एक्स एक्सिस के ऊपर है. और दिस वन इज द ऑरिजिन पॉइंट. अगर हम ये वॉल्यूम अगर इसका कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन. इन दिस ग्राफ देयर इज ए डिफरेंट वॉल्यूम V1, V2, V3, V4. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ V1 इज ग्रेटर देन V2. V1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी V2 से, और V2 की वैल्यू V3 से कम होगी, और V3 की वैल्यू V4 से कम होगी. तो दिस वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमंटन्स लॉ और गैलुसैक लॉ. नेक्स्ट है आपका एवोगाद्रो लॉ. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज एवोगाद्रो's लॉ. दिस लॉ was at constant temperature and constant pressure. यहाँ एवोगाद्रो ने क्या किया, जो यूनिट लेकर के चल रहे थे ये कि किसी ने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, किसी ने प्रेशर को कांस्टेंट किया. इन्होंने कांस्टेंट किया किसको, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी टू गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर contain the same number of molecules. अगर क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर आपके कांस्टेंट हैं, तो जो वॉल्यूम होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कंडीशन कब, जब आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स. साइन ऑफ प्रोपोर्शनल बढ़ा देते तो आ जाएगा V is equal to Kn, where K is a constant. So for two or more gases, that is V1 upon N1 is equal to V2 upon N2 is equal to constant. So this was the Avogadro law. But take an example how it is possible. 2H2 plus O2, it gives 2H2O. When means 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen gives 2 mole of water. Then this is true that 2 volume of hydrogen reacts with 1 volume of oxygen to produce 2 volume of water. Similarly, अगर हम क्या करें, 2 liter of hydrogen reacts with 1 liter of oxygen to produce 2 liter of water. Similarly, अगर हम यहाँ पर रेशियो कम कर दें, इसको ले लें हम 1 liter, तो यहाँ क्या जाएगा, हाफ लीटर एंड प्रोड्यूस 1 liter. क्लियर? तो एवोगाद्रो के अकॉर्डिंग ये था कि जो वॉल्यूम है, हम नंबर ऑफ मोल्स क्या प्राप्त होते हैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. क्लियर? सो 1 mole of any gas contains the same number of molecules, that is Avogadro number. Avogadro number की वैल्यू Na, that is equal to 6.022 multiplied 10 to the power 23. Avogadro की वैल्यू क्या होती है, 6.022 into 10 to the power
23, and by this law must occupy the same volume at a given temperature and pressure, and the volume of one mole of gas is called molar volume. इसका जो वॉल्यूम आता है 1 मोल के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कहते हैं। एंड इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 22.4 लीटर। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। So this one is about the Avogadro law, and the law also can also express as, हम इस लॉ को मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। द मोलर गैस वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ए स्पेसिफिक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। यानी ये जो इसकी वॉल्यूम की जो वैल्यू है स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर भी कितनी होगी? 22.4 लीटर। ठीक है जी। और 22.4 लीटर पर मोल कहां पर? एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपने बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है। तो यहाँ ये आपके जो गैसियस लॉज हैं वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके सिलेबस में और कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल बिहेवियर। ठीक है जी। इसके बाद मतलब एक वीडियो का टॉपिक और ये रह गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस लॉ। बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर इसमें अभी क्या दिया होगा? डाल्टन्स लॉ होगा और ग्राहम डिफ्यूजन लॉ होगा। इस बार वो आपके सिलेबस में नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो पोर्शन है वो हम आपको यहाँ करा रहे हैं। इस वीडियो को आप देखें। इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, वो आपके पास सबके पास है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।